Yes. Hello. Hi. Good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. Hello. Hi. We are yet back again with a new topic, with a new session, lot of information, lot of knowledge sharing with me and my team. I'm sure you're absolutely going to love today's discussion. Hello Pramod ji, good evening. कैसे हैं आप? I hope you are taking enough care of your health. Your blood sugars are under control. If you need any call, any discussion, any support from my end, please feel free to tell your health coach to connect with me, and we can absolutely have a special discussion just for all our AccuCheck Wealthy family. Yes. Meanwhile, thank you Pramod ji. आप जल्दी आए सेशन में. सबके लिए हमें वेट करना होगा. हमारे सारे एक्यूचेक वेल्दी के मेंबर्स हैं, उनके लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे. हेलो मिस्टर विनोद, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई होप यू आर टेकिंग इनफ केयर ऑफ योर हेल्थ. Thank you so much for joining before time. Are your blood sugars under control? Do you need any guidance, suggestion from my end, from my team's end? Please feel free to drop in your messages in the chat box. I am here to help you, motivate you, and guide you. Wow. Great, Pramod ji. Your coach is here to share some more knowledge today. I'm sure you're going to enjoy and have a great time on today's session. Yes, we have somebody we all have known for few sessions in the past. Let's wait for all our AccuCheck Wealthy family to join and then we'll start today's discussion. Hello Sanjeev ji, good evening. How are you? I hope you're doing well. Thank you so much for joining before time. We'll have a discussion about a lot of knowledge sharing things today. And I'm sure all of us are going to love and enjoy today's session. Hi, Jose, how are you? I see you in the sessions after a long time. Thank you so much for joining. I hope you enjoy today's knowledge sharing with all our AccuCheck Wealthy family. Take care of your health. हेलो पांडुरंग जी, कैसे हैं आप? आई होप आपकी तबीयत अभी ठीक है, आपका ब्लड शुगर अभी पहले से बेटर है, पहले से अच्छे कंट्रोल में है. आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे और मेरी टीम से, प्लीज चैट बॉक्स में एक मैसेज डालिएगा एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट. Hi Nayan, good evening. I see you are getting too regular in the sessions. I'm very happy that you're working proactively on your health. Thank you so much for being connected with AccuCheck Wealthy family. Let's wait for all our AccuCheck Wealthy members and we'll start with today's discussion. Yes, we have a special guest, a special member who's going to guide us, motivate us, share a lot of knowledge on diabetes management, health management, weight loss, BMI control, balance plate, portion control, relationship between type 2 diabetes and weight loss, so many things. I'm sure all of you have a lot of questions in your mind, want to know a lot of information from me and my team. Don't worry, we are here like every weekend to share a lot of knowledge, to share a lot of information. Let's welcome our today's webinar guest and our speaker for the day. We have Madhurima Kar, who is one of my premium health coaches in the AccuCheck Wealthy program, who has taken care of more than 5,000 patients, not just for diabetes management, overall lifestyle, weight loss, cholesterol management, heart problems, dyslipidemia, hypertension, all of these things. And she has taken care of all her patients with
90% of outcomes in most of our patients. So I'm very glad and happy to welcome Madhurima Kar, our diabetes coach and expert for today. And she's going to discuss on the topic of weight loss and diabetes management. Welcome, Madhurima, for today's session. Over to you. Thank you. Thank you so much. So good evening all. This is your health coach and diabetes expert Madhurima this side. So today's session is very interesting. This is weight loss and early signs of diabetes. So let's start this session. Just allow me some minute. I hope my screen is visible. Yes. So today's session is weight loss and early signs of diabetes. When people actually diagnosed with diabetes, always weight loss, weight gain is a very common thing that we go through on a daily life. Today, we got to know how weight loss impacted the diabetes. Weight loss is an early sign, number one, of a diabetes. And in another way, we can see like that key. If a patient is diabetes, if a user is diabetes, then sometimes weight loss can be a concern. In these two parameters, we will get to know how weight loss is proportional to diabetes. So let's have a look. Yes. So we all know that, this, yes, obesity and, the diabetes are the two health conditions that actually require very, very significant attention. Because most of the cases we can see that people who are diabetes, they are actually either overweight or obese. But weight loss and underweight is also a problem, is also a concern part. So while managing weight loss, that can help to prevent the onset of diabetes. Here in the whole, class, we will able to identify, we learn how we have to identify the early signs of diabetes that can affect the management of the condition. First, we can see the term in the screen, that is unexplained weight loss. So this particular term, unexplained weight loss, what is that? It is a term that used to describe a decrease in body weight when the body weight is decreasing, that occurs unintentionally. Number one, okay? This is not an intentional weight loss, which we generally do, and which for the diet and exercise part. It is not that. It is an unintentional thing that happens in terms of weight loss, and it can be a warning sign of diabetes. Let's understand the mechanism. Let's understand the thing, ye hota kya hai, right? So weight loss can be a common symptom in the early stages of diabetes. Please mark my point. For the type 2 diabetes, it can be an early symptom. So what is the mechanism behind that? When the body actually does not effectively utilize the insulin hormone. Insulin, you all know that insulin is the prime responsible hormone for the blood sugar elevation. So when the body does not effectively, utilize the insulin, or it becomes like insulin resistant, what happened? Glucose, the sugar, natural sugars, cannot enter the cells to be used as energy. We all know that to perform our physical activity, we all want a certain level of energy. And we only get this energy from the food, from our daily well-being, okay? But when it is impossible for the body, it can't produce, it can't utilize the insulin, and the glucose cannot enter into the cells to be used as energy. As a result, what happened? The body may start breaking down fat and muscle for energy. क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ तो ना कुछ तो चाहिए. They only compensate. But in that case, what they do? जो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड मसल है, उनसे ब्रेकिंग डाउन होकर वो एनर्जी लेते हैं, राइट? So it lead to weight loss. We can see in the picture that our whole total body weight, इसके लिए चार चीजें very very important. Number one, bone. Number two, body fat, which is a good fat. Number three, muscle fat.
and number 4 is other, I mean the internal organs. So ये चारों चीजें, ये चारों पैरामीटर अगर आपका सही हो, then only your body weight is good enough. Once you reach in a middle adulthood ना, your weight should remain relatively stable from year to year. वेट का फ्लक्चुएशंस होना नहीं चाहिए. क्यों नहीं होगा? अगर ये चारों चीजें बिल्कुल सही रहता है तो इन दैट केस आपकी बॉडी वेट भी सही रहेगा. योर टोटल बॉडी वेट डिपेंड्स अपॉन दिस 4 थिंग्स: बोन, बॉडी फैट, मसल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. देन कम टू abnormal weight loss. We sometimes see that कि अचानक से बहुत वेट घट गया है. We don't know, but it's happened. It is happening because of the diabetes. तब आपको समझना है, yes, maybe I am detecting diabetes. So losing a certain, pounds of weight, a certain underlying medical condition, none other than diabetes. So जब आपका ये हो रहा है, you are अचानक से weight lose हो रहा है या फिर बहुत weight घट गया है, then definitely consult your healthcare professional because it is a concern. Then come to the part of symptoms. What are the symptoms of diabetes? Okay. There is a lots of symptoms. So let's discuss about the symptoms. So number 1 is increased thirst. Okay. So excessive thirst. Why it happens? It occurs due to the increased urination. जितना frequent urination होगा उतना ही thirst बढ़ेगा, because उसके लिए आपको proper water intake होना चाहिए. अगर आपका प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं होगा, इफ यू आर डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इन दैट केस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से एक्सेसिव थर्स्ट होगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय द एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स. Wait, what is next? Next is frequent urination. So किडनी का क्या टेंडेंसी है? The kidneys always try to remove the excess sugar from the blood by filtering. There is a filtration process which kidney do perform. और उससे क्या होता है ना, जब बॉडी का जो excessive sugar है वो निकल जाता है through the urine. So these leads to more urination, more frequent urination, and this situation को हम क्या बोलते हैं? Polyuria. स्पेशली ये रात को होती है, नाइट को प्रॉब्लम है ना किसी किसी को कि बहुत बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू टेक योर वाटर इन अ प्रॉपर क्वांटिटी. शाम के 5 बजे के अंदर अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर आपका इंटेक हो जाना चाहिए. कोई भी बेवरेजेस, कॉफी, सोडा आप शाम के 5 बजे के बाद नहीं पिएंगे. देन इन दिस वे यू कैन एक्चुअली हेल्प दिस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम जो नाइट के टाइम पे ज्यादा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज की इंक्रीज्ड हंगर. Despite of having good food in a good time, everything, people with diabetes, may experience constant hunger. Why constant hunger is happening? Because आपने जो खाना खाया है ना, that is not, meeting the satiety level. अगर full of satiety नहीं provide किया है वो खाने ने, तो आपको, you may experience the hunger, and that is a constant hunger. इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीफेजिया. पॉलीफेजिया इज अ सिचुएशन. व्हाई? बिकॉज द बॉडी सेल्स अनएबल टू अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज द ग्लूकोज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ योर आपका जो ऑप्शन है फूड का, या आपका जो क्वांटिटी है, आपका जो टाइमिंग है, चॉइस ऑफ फूड है, दीज आर नॉट इनफ, दीज आर नॉट सफिशिएंट. इसीलिए पॉलीफेजिया सिचुएशन ऑकर्स. नेक्स्ट इज फैटी. This is a very common thing. So feeling excessively, tired, sometimes sleepy, drowsy, it is a problem, and this condition is called fatigue. And this is a very, very, very common problem for the diabetes people. Fatigue होना, especially शाम के, खाने के बाद, लंच के बाद से उस टाइम पे people will start feeling कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है काम करना, mood swings हो रहा है, बहुत sleepy लग रहा है, drowsy लग रहा है. Why? Because of the fatigue. And these are the very, very symptoms, early symptoms of diabetes. Because क्या है, body का जो सेल है वो उतना एनर्जी उसके पास नहीं होता है कि वो आपको प्रोड्यूस कर पाए, ड्यू टू inability of glucose production effectively. Next is obviously the weight loss. So the matter is, जब भी आपको weight loss हो रहा है,
you have to understood that is it a intentional or unintentional. इंटेंशनल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे जाके. अनइंटेंशनल के बारे में हम बात करते हैं, विच कैन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ वेट लॉस. तो क्या होगा ना, as mentioned earlier, weight loss is actually occur in the early stage. बहुत early, जब especially जब type 2 diabetes होता है, in that case a very early stage, it has body started breaking down the stored fat and muscle for energy, and that is the reason behind weight loss. And then blurred vision, आंखों का problem, धुंधला हो जाना, the elevated blood sugar levels basically can affect the lenses of the eyes. हमारा जो lens होता है ना cornea, उसमें affect होता है, that causing the blurred vision. Next is diabetes and sudden weight loss. So अगर आपको अपना weight loss control करना है तो उसके लिए दो आपको थिंकिंग रखना पड़ेगा. फर्स्टली कि इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल. अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी चाहिए तो प्रॉपर टाइमिंग ऑफ फूड, प्रॉपर चॉइस ऑफ फूड, आप क्या खाना खा रहे हो. डायबिटीज का मतलब ये नहीं कि आपको कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देना है. एक कार्ब्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब, लो फैट रहेगा, हाई फाइबर रहना चाहिए, प्रोटीन ओरिएंटेड खाना होना चाहिए, तभी जाके बॉडी को वो एनर्जी मिलेगा सेल में प्रोड्यूस करने के लिए. वो जो एनर्जी हमें मिल रहा है वो पूरे सेल पे सर्कुलेट होगा, तभी जाके बॉडी will function properly. Otherwise, it can't function properly. Then we come to know कि why can diabetes, cause weight loss. आप में से मुझे जानना है before we discussing this particular point कि आपका जो weight है, what you guys think, आपका जो weight है बिल्कुल perfect है. आप में से कौन कौन कितना weight है, overweight है, obese हो या underweight हो. आपका जो भी है, सिर्फ वेट नहीं जानना है मुझे. आपको क्या लगता है, यू आर ओवरवेट, यू आर ओबेस और यू आर अंडरवेट. जो भी है आप मुझे चैट पर डाल सकते हो. लेट मी सी ऑल दिस थिंग्स कि वेट के बारे में आप कितना सोचते हो. डाइट और एक्सरसाइज के बारे में तो हम हमेशा बात ही करते हैं, बट वेट इज अ वेरी ग्रेट कंसर्न फॉर डायबिटीज पीपल. सो आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो या ओबेस हो. I can see so many chats are coming. You guys are replying. Want more responses from your end? Yes. अपने वेट के बारे में जानना और अंडरस्टैंडिंग रहना, अप टू डेट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक आध दिन सिर्फ वेट के बारे में बात हो. एवरी टाइम अप टू डेट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. Thank you so much. I can see so many responses. Underweight, overweight, obese and everything. Thank you so much कि आप लोगों को अपने वेट के बारे में जानकारी है या रहना भी चाहिए. We can see this question that why can diabetes cause weight loss. हम सबको एक नॉलेज है कि डायबिटीज है, इसका वेट बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है. वेट लॉस का बहुत कम लोगों का ही होता है, बट इज अ वेरी रेयर कंडीशन और इज अ वेरी क्रॉनिक कंडीशन ऑल्सो. बेसिकली ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, दीज आर द ओनली प्राइमरी हार्मोन. इसी के इर्द गिर्द सब कुछ होता है, बॉडी का फंक्शन एंड एवरीथिंग. So these insulin hormone actually, what do particular this hormone do? It allows your body to use that glucose for energy. आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए. ये पता कैसे चलता है? इंसुलिन डू दिस वर्क. इंसुलिन हार्मोन अगर अच्छे से प्रॉपरली प्रोड्यूस होगा, सर्टेन रेशियो में प्रोड्यूस होगा, तो ही जाके प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा. अगर सर्टेन रेशियो में प्रोड्यूस नहीं होता है या फिर जो प्रोड्यूस ऑलरेडी है उसका यूज ही नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज नहीं जाएगा, वो एक पर्टिकुलर ब्लड स्ट्रीम में है, अटक के रह जाएगा. तो इन दैट केस क्या होगा, ब्लड शुगर का इशू होगा, इधर वेट लॉस होगा, ब्लड शुगर स्पाइक्स वगैरह सब कुछ होता रहेगा. सो व्हेन द ग्लूकोज डज नॉट अराइव योर सेल्स ना, योर बॉडी थिंक्स कि इट इज स्टर्विंग. स्टर्वेशन पीरियड होता है ना, तो बॉडी को इतना पता नहीं चलता है. बॉडी थिंक्स कि इट इज स्टर्विंग एंड इट फाइंड्स बेसिकली अ वे टू कंपेंसेट. सो इट क्रिएट्स एनर्जी. हाउ इट क्रिएट्स, उसको तो चाहिए एनर्जी. व्हाट बॉडी कैन डू, आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड मसल है, उनसे वो एनर्जी लेना शुरू करता है. एंड दिस कॉजेस अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. यस. So diabetes definitely is a dangerous thing. जो weight loss
अगर वेट लॉस इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम, और इट इज वेरी वेरी डेंजरस, और ये डायबिटीज को भी बहुत डेंजरस बना देता है. इट्स अ वेरी राइट वर्ड कि यस, वेट लॉस कॉज्ड बाय डायबिटीज डेंजरस. यस इट इज. सो इट इज ऑफन अज्यूम्ड दैट कि लूजिंग वेट इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी साइन. तो ये अनइंटेंशनल नहीं है, ये इंटेंशनल. अगर आप ओबेस हो, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आपको वेट लॉस करना है टू मेंटेन योर वेट एंड टू walk a good journey with diabetes, because it all depends how much weight you are losing within what time span. I'm telling you one important thing. When we come to the diet and exercise part, when we start doing a diet now, we always think that कि अगर कोई ओबेस है, किसी का 10 kg घटाना है, किसी को 20 kg घटाना है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो you always think that कि कितनी जल्दी हम घटा सकते हैं, राइट? We often do ask our health coaches or our dietitians कि I want to lose this much weight. But आपको एक बहुत सिंपल चीज आपको जाननी है और आपको समझनी भी है. अगर आपका वेट 10 kg एक महीने में घट सकता है, तो मेरा ऐसा होगा नहीं. हर एक का इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. वेट बॉडी का रेसिप्रोकेशन भी अलग अलग होता है, और बहुत ग्रेजुअली स्लोली वेट लॉस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. बहुत जल्दी से हम फैट डाइट बोलते हैं ना. आई थिंक यू गाइस हैव हर्ड दिस टर्म, दैट फैट डाइट. जल्दी से बहुत हरी और बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन पे हम लोग वेट रिड्यूस करते हैं. दिस इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज आपको एक सीवियर कंडीशन है ऑलरेडी, एक कोमॉर्बिडिटीज है विच इज डायबिटीज. आगे जाके आपका वेट भी ज्यादा है, आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है. तो इन दैट केस ना यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि आपका जो वेट लॉस होगा ना, आपका जो वेट रिडक्शन होगा, वो प्रोसेस बहुत हेल्दी होना चाहिए. आपकी बॉडी से 2 kg घट रहा है, घटने के बाद वो 2 kg को जो घटा है उसको सस्टेन करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा. वापस से वो 2 kg आना नहीं चाहिए. अगर वो मेंटेन हो रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन ओनली यू कैन गो फॉर रेस्ट पीरियड. फिर से आप 2 kg के लिए ट्राई करो. बहुत जल्दी में होगा, बहुत हरी में होगा, तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि आफ्टर अ सर्टेन डे वो ही 2 kg घुमा के वही जगह पर आ सकता है. So this is called intentional weight loss. It is also very important, but it is important for obese people or overweight people. ठीक है? Because a gradual, जो मैंने बोला, gradual is a very important term. The gradual and intentional weight loss with the support of regular every time it is very very important. सिर्फ diet से कुछ नहीं होता है. Diet, exercise, also medication, habitation, proper timing of food, proper rest, proper water intake, all these things are very very beneficial for the heart, for the cholesterol level, and also the blood pressure. Because आपका weight ज़्यादा है, so it is also welcoming some other comorbidities also. If the blood sugar is very very too high na, the sugar content in your body, then muscle breakdown can occur, which can also cause an unhealthy weight loss, जो हमने अभी डिस्कस किया weight loss के बारे में, right? So, 2 पर्सपेक्टिव हमने अभी तक जाना है. एक तो है कि अगर आप ओबेस हो या ओवरवेट हो, तो आपको इंटेंशनल वेट लॉस में जाना चाहिए बाय द गाइडेंस ऑफ योर हेल्थ कोच. और अगर आपको एकदम अर्ली टाइम पे आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको समझना है कि यू मे बी डायबिटीज. तो आपको डायबिटिक फ्रेंडली डाइट और वेट मैनेजमेंट डाइट करना है. सो दीज आर द टू पर्सपेक्टिव्स. 2 अलग अलग कंडीशन है, इंडिविजुअल बेसिस पर डिपेंड होता है, तो ऐसे आपको सोचना होगा. When to call your doctor? So, if you have unintentionally lost more than 5% of your normal body weight, or more than 4 to 5 kg in only 6 to 12 months or less, you should consult your doctor. अगर आपका वेट अनइंटेंशनली घट रहा है और वो भी बहुत रैपिडली, जैसे कि 4-5 kg ऐसे ही 6 महीने में रिड्यूस हो रहा है, तो इन दैट केस आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए. Because there can be some severe issues, some severe problems that can be happen. So this is the right time you can actually consult your doctor. So what's a healthy weight to aim for? We all had heard about BMI, body mass index. So अगर आपको जानना है कि आपका प्रॉपर वेट क्या है और आपका एम क्या हो,
कुछ कुछ चीजें लगेगी, जैसे कि एक तो आपकी एज, आपकी हाइट और आपकी वेट। ओके, ये तीनों चीजों को मिला के हम बीएमआई करते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर बाय वेट इन मीटर स्क्वायर, इसको तीनों को मिला के हम अपना बीएमआई निकाल, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स से हमें पता चलता है कि ये जो कंडीशन है, आप ओवरवेट हो, आप अंडरवेट हो, आप ओबेस हो, ओबेस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बहुत क्लासिफिकेशन होती है, तो वो आप कौन सी चीजों पे। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर यू गेट स्टार्टेड, यू नीड टू नो कि व्हाट अ हेल्दी वेट इज, आपके लिए कौन सा नंबर सूटेबल है, व्हाट इज योर टारगेट रेंजेस। देन आपको एक गोल सेट करना है कि मेरा अभी ये टारगेट रेंज है, विद इन अ सर्टेन पीरियड, ये मेरा ड्यूरेशन है, इस टाइम पे मुझे इतना वेट घटाना है। और ये कौन चूज करेगा? यू एंड योर हेल्थ कोच विल डिस्कस आपकी कंडीशन के हिसाब से कितना वेट घटाना कितने टाइम पे सही है। डोंट रन बिहाइंड कि मुझे वो चीज है, मेरे ये ओकेशंस है, सामने मेरी शादी है, सामने मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कहीं पर जाना है, आई हैव टू लूज वेट इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डोंट गो बिहाइंड दिस। अगर आपके लिए हेल्दी और ग्रेजुअल वेट के हिसाब से 2 kg सिर्फ 1 मंथ है, दैट इज गुड। अपने हेल्थ कोच से आप कंसल्ट कीजिए, जो आपके लिए सही होगा, दे विल ओनली प्रोवाइड यू दैट मच इंफॉर्मेशन एंड दैट मच सजेशन। नो योर वेस्ट साइज। आई गेस आपने वेल्दी का जो एप्लीकेशन है वहां पर एक है WHR, वेस्ट हिप रेशियो। आई डोंट नो आप में से कितने जनों ने वो पर देखा है WHR, और आप में से आप मुझे बताइए चैट पर कि कितने जनों ने वो वेस्ट हिप रेशियो वो वाला सेक्शन देखा है और वहां पर अपना वेस्ट हिप रेशियो कभी भी कैलकुलेट करके वहां पर डाला है। टेल मी द रेस्पॉन्सेस इन द चैट सेक्शंस। WHR जो है वेस्ट हिप रेशियो है, वो वेल्दी के एप्लीकेशन में बहुत विजिबल है। तो आई वांट टू नो कि आप में से कितने जनों ने वो देखा है। Yes, I can see so many responses. So yes, आपका जो वेस्ट साइज है वो डिपेंड करता है ऑन योर जेंडर एंड योर एथनिसिटी। फाइन। सो इट शुड बी, यहाँ पर 3 चीजें हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। नंबर 1 इज लेस देन 80 सेंटीमीटर फॉर ऑल women, irrespective of all thing, all women. Number 2 is less than 94 centimeter for most of the men. ठीक है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट एथनिसिटी, सो लेस देन 90 सेंटीमीटर फॉर एशियन मेंस, क्योंकि क्या होता है ना, रीजन के बेसिस पे, रीजन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है। सो 80 सेंटीमीटर लेस देन फॉर ऑल वुमेन, लेस देन 94 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट ऑफ द मेन, और लेस देन 90 सेंटीमीटर फॉर एशियन मेन। डायबिटीज डाइट प्लान्स टू लूज वेट। अभी हम बात करेंगे इंटेंशनल वेट लूजिंग के बारे में। So you may have heard that diabetes can be controlled by diet. We all know that, right? So there is no such thing as special diet exclusively for people with diabetes. जैसे कि हम जब बात करते हैं डाइट के बारे में, there is a not a diabetic friendly fruit, okay? Diabetic friendly fruits, diabetic friendly foods, diabetic friendly drinks. There is nothing like that. सिर्फ हमें क्या करना है कि हम जो खाना खा रहे हैं फोकस रखना है, दैट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लो इन फैट, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर। तो वैसा खाना खाने से यू कैन मैनेज योर डायबिटीज। बट ऐसा नहीं है कि बाजार में कहीं पर ऐसी डायबिटिक फ्रेंडली फूड मिलता है, या फिर केला इज नॉट डायबिटिक फ्रेंडली, मैंगो इज नॉट डायबिटिक फ्रेंडली, एप्पल इज डायबिटिक फ्रेंडली। दीज पर्टिकुलर थिंग इज नॉट लाइक दैट। आपको सिर्फ चूज करना है कि कौन सा खाना आपके लिए सही है। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बहुत बात किया है। सो अभी ये टाइम है पर्टिकुलर जहां पर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इंक्लूड करना है, विच आर लो ग्लाइसेमिक लोडेड फूड, वही आपको लेना है, राइट? सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज टू लूज वेट, बट देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल डाइट। इसीलिए वी ऑलवेज गो फॉर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स, इंडिविजुअल डाइट प्लान्स। किसी के लिए कोई पर्टिकुलर स्केप्टिकल रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है कि यही फॉलो करना है, ये सबके लिए सही है, ओके?
So आपको आपके हिसाब से, आपका जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपके हेल्थ कोच के साथ आपको बात करनी होगी कि आपके हिसाब से, आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से क्या डाइट होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कैलोरी कितना होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स कितना कितना होना चाहिए, ब्रेकडाउन क्या होगा, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में कितना कार्ब्स और कितना प्रोटीन आप लोगे, उससे कितना आपका सैटिस्फाइड फील हो पा रहा है, हंगर कंट्रोल हो पा रहा है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अंडर दिस डाइट प्लान. Just allow me 1 minute. Yes. So how is diabetes weight loss treated? So अगर आपको weight loss हो रहा है बहुत unintentional, अचानक से, immediately you need to check with your healthcare professionals. I mean your health coaches and also your doctor. First consult आपका होगा कि आप उनके साथ consult कीजिए and you have to learn how to gain weight. तब आपका खाने का स्ट्रक्चर, अगर आप डायबिटीज हो और आपको वेट लॉस हो रहा है, तो आपका खाने का जो पैटर्न होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो अलग होगा. आपको कुछ ऐसा खाना हमें देना पड़ेगा या फिर ऐसे शेड्यूल करना पड़ेगा कि ताकि आपका वेट भी गेन हो और डायबिटीज का शुगर जो रीडिंग्स है वो भी स्पाइक ना हो. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बटर, मेयोनीज, फास्ट फूड, कोई भी अनहेल्दी फैट्स यू विल स्टार्ट ईटिंग. ओके, दिस कैन बी this can lead to a worsen case of diabetes. ऐसा नहीं है, बट आप गुड फैट खा सकते हो, हेल्थी फैट, जैसे कि घी. घी इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इज अ गुड फैट. आप रोटी में थोड़ा, आप जब चपाती या रोटी खा रहे हो लंच एंड डिनर में, वहां पर हाफ टी स्पून या 2 टीस्पून आप थोड़ा बहुत घी लगा सकते हो. इट कैन एड सम कैलोरी, इट कैन हेल्प यू ऑल्सो गेनिंग वेट, और ऑल्सो डायबिटिक के लिए भी घी इज वेरी मच गुड टू यूज. सो आपको चूज करना है कि विच आर द हेल्दी फैट्स. आपको वेट गेन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी अनहेल्दी फैट्स आप खाना शुरू करो. आप एवरीडे मैंगो खाओ, आप एवरीडे बाहर का खाना खाओ, या फिर आप मेयोनीज, बटर वगैरह, बहुत राइस, पोटेटो, ये सारी चीजें खा रहे हो, डेफिनेटली वेट गेन हो जाएगा, बट इन अनहेल्दी वे. वो हमें नहीं चाहिए. डेफिनेटली हमें हेल्दी वे मेंटेन करना होगा, एंड हेल्दी वे मेंटेन करके ही हमें वेट गेन करना है. Then come to the important part, which is following a low GI diet, which helps weight loss and manage diabetes. Glycemic index is a very common term. और हम सबको पता है कि अगर डायबिटीज में हमें चूज करना है which food are considered, which foods are recommended, तो always we have to go for low glycemic index food, because a low glycemic index diet means kya hai? Eating food with low glycemic ranges. So we can see there is a lots of food which are actually digested more slowly or providing a more gradual rise in blood sugar levels. Those are the low glycemic loaded foods. क्यों हम low glycemic loaded foods खाएं? Because slowly digestion होता है, not only digestion slowly होता है, but also it helps to absorb also. अगर मेटाबॉलिज्म को हम देखें तो उसका 2 पार्ट है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. सिर्फ डाइजेशन होने से काम नहीं होगा, अब्सॉर्ब भी होना चाहिए, राइट? नहीं तो वी नो ना, वो किडनी विल रिमूव द गुड वन थ्रू यूरिन एंड हमारा वेट लॉस हो जाएगा. सो आपको वैसे चूज करना पड़ेगा ताकि वो फूड्स लो इन ग्लाइसेमिक लोडेड हो. फूड ऑब्वियसली द चॉइस ऑफ फूड शुड बी वाइजली, और वो क्या करे, प्रोवाइड अ ग्रेजुअल राइज इन ब्लड शुगर. अचानक से आपका ब्लड शुगर हाइक भी नहीं होगा, फ्लक्चुएशंस नहीं होगी, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा. तो जब आप अपना नॉर्मल खाना डिजाइन कर रहे हो, सारा दिन का खाना, दिनचर्या, जैसे फ्रॉम वेकअप टू गो टू बेड, आपको एकदम प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करना होगा. यू डू नॉट हैव टू स्किप द ब्रेकफास्ट, देन मिड मॉर्निंग स्नैक्स, देन लंच, देन इवनिंग टाइम स्नैक्स, देन डिनर, एंड बीच में एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ एंड योर टोटल फिजिक. सो these are the basic things you have to need to do. और इसके लिए आपको आपकी हेल्थ कोच की गाइडेंस की बहुत जरूरत होगी, बिकॉज दीज आर द जेनेरिक थिंग्स कि आपको लो जीआई खाना है एंड एवरीथिंग. लेकिन कैसा कितने अमाउंट में खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, एक दिन में आप कितना फूड खा सकते हो, कैसे उसको बैलेंस करना है, एडजस्ट करना है, दैट योर हेल्थ कोच विल डेफिनेटली हेल्प यू. So the benefits of weight loss for diabetes. So type 2 diabetes, there is a 2 type, type 1 and type 2. So
टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली ऑकर्स, क्यों होता है टाइप 2 डायबिटीज? व्हेन आवर बॉडी बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंट and causing sugar to build up in the blood. We have discussed that when body becomes insulin resistant, it can't utilize or produce enough insulin which is needed to produce the energy. Then what what happened? The body's glucose actually stored in the bloodstream, and that can lead to elevated blood sugar levels, which is high in a range. So having overweight or obesity puts you in a much higher risk. उससे क्या हो सकता है? आपका शुगर लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर आप ओबेस हो, आप ओवरवेट और आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, इन अ सर्टेन टाइम के बाद आपका हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम आगे जाके, हाइपरटेंशन हो सकता है, थायराइड हो सकता है। हमने लास्ट वेबिनार में आई थिंक डिस्कस किया था थायराइड के बारे में। सो वी हैव टू थिंक दैट कि अगर मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा भी ऐसा है कि टाइप 2 डायबिटीज है, साथ में ओबेसिटी है, ओवरवेट है, उन लोगों का क्या है ना, हायर रिस्क फॉर एनी हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज बहुत बढ़ रहा है। 50% ऑफ एडल्ट्स में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज है, मोस्ट ऑफ देम आर ओबेस, प्रॉपरली मेंटेन सब कुछ नहीं हो रहा है और आगे जाके हार्ट का प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो हमें वो कंट्रोल करना होगा, राइट? और उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम डे वन से आपको अपने डाइट के बारे में ख्याल रखना होगा। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। वी आर ओनली लर्निंग कि इसका मैकेनिज्म क्या है। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, रेस्ट, ये तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन ये अलग अलग पर्सपेक्टिव में डिपेंड होता है। किसी के लिए वेट लॉस इज अ कंसर्न, किसी के लिए वेट लॉस इज अ कंसर्न ऑल्सो। टू टाइप्स ऑफ है। एक के लिए जो ओवरवेट और ओबेसिटी है, उसके लिए वेट लॉस इज अ कंसर्न, क्योंकि उसको वेट घटाना है, नहीं तो इशू हो जाएगा। और किसी के लिए ऐसा है कि जिसको वेट लॉस हो रहा है डायबिटीज के इनिशियल स्टेज में, तो वो भी एक कंसर्न। सो दो चीजों के बारे में हमने आज साइमल्टेनियसली डिस्कस किया है कि एक ही चीज है वेट लॉस दैट कैन इम्पैक्ट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल विद डायबिटीज, और उसका जो सोल्यूशंस होगा, रेमेडी भी होगा, वो भी डिफरेंट ही होगा, और वो इंडिविजुअल होगा और कस्टमाइज्ड होगा डेफिनेटली। अब हम जानते हैं कि अगर हम वेट लॉस करेंगे डायबिटीज में तो उसका बेनिफिट क्या है। ओके, सो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अबाउट द इंसुलिन रेजिस्टेंस पावर्स एंड एवरीथिंग, वो काफी हद तक कम हो जाता है, दैट डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 2 इज व्हिच मेक्स इट इजियर टू रीच टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स। आप जो फास्टिंग और बीपी एक्यूचेक की ग्लूकोमीटर यूज करके आप चेक करते हो, उसको जो रीडिंग्स आता है दैट शुड बी गुड एनफ, दैट शुड बी इन अ सैटिस्फैक्टरी रेंज, दैट शुड नॉट बी हाइपर, दैट शुड नॉट बी हाइपर, दैट शुड बी इन अ सैटिस्फैक्टरी रेंज। इम्प्रूव्स इन ओवरऑल एनर्जी लेवल एंड मूड। आप जो सारा दिन में काम करते हो, योर होल फिजिकल एक्टिविटी एंड एवरीथिंग, उसके लिए यू नीड प्रॉपर एनर्जी। हाउ यू ऑल गेट द एनर्जी? ओनली फ्रॉम फूड, प्रॉपर रेस्ट से, प्रॉपर खाने से, प्रॉपर वाटर इनटेक से। अगर सब कुछ प्रॉपर होगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, राइट? अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका खाने का स्ट्रक्चर, खाने का पैटर्न, चॉइस ऑफ फूड इज नॉट गुड। आपको वहां पर काम करना होगा, तो ही जाके आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगा, राइट? मूड, हमने फैटिक के बारे में बात किया है, राइट? तो मूड भी सही होना चाहिए, बिकॉज व्हेन आफ्टर अ सर्टेन टाइम we all come back from office, we all come back from our work, so अपना जो मूड है that should be energetic। ऐसा नहीं है कि बहुत ड्राउजी, स्लीपी, थका हारा हुआ ऐसा महसूस हो आपको, then there is something glitch, कोई तो प्रॉब्लम है, आप ठीक से कुछ तो नहीं कर रहे हो, गलती कहीं पर भी तो है, that you need to check out। Okay, then lower total cholesterol level, triglycerides, low density lipoprotein, high density lipoprotein, these terms are very very important associated with diabetes। So अगर आपको डायबिटीज है तो आगे जाके ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, मे बी आपको ये प्रॉब्लम हो भी रहा है। चेक विथ योर डाइटिशियन, चेक विथ योर हेल्थ कोच, अपना टेस्ट कीजिए, जो रीडिंग्स वगैरह आ रहा है, जो लेवल्स और रिजल्ट आ रहे हैं उसके साथ डिस्कस कीजिए। और आई थिंक 2-3 महीने बाद बार ये टेस्ट करना, ट्राइग्लिसराइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, एलडीएल एचडीएल रेशियोज का, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायबिटीज हो, अगर आप ओवरवेट हो, ओबेस हो, तो आपको चेक करना ही चाहिए, ताकि आगे जाके कोई किडनी प्रॉब्लम, हम क्रिएटिनिन भी टेस्ट करते हैं ना टू चेक कि किडनी का कोई प्रॉब्लम है या नहीं, हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम आगे जाके हो सकता है, नहीं हार्ट डिजीज, वो हमें सब कुछ चेक करना होगा।
ओके। एंड ये सब चीजों के लिए अपना इंडिविजुअल अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Talk to your health coaches for your personalized diet plan. Okay, don't go for a generic any information, क्योंकि आप अगर गूगल करोगे, आप अगर ये वो फलाना कहीं से भी ढूंढोगे तो आपको वो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, बट वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है. आपके लिए क्या सही है? आपके लिए प्रोबेबली मैंगो खाना सही है, आपकी दोस्त के लिए मैंगो खाना सही नहीं है. यू बोथ आर डायबिटिक. तो इसके लिए आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए होगा. और आप अगर पर्सनलाइज डाइट प्लान फॉलो करोगे तो ही जाके ये सारी प्रॉब्लम को आप कम्बैट कर पाओगे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्बैट योर डायबिटीज विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर टिप्स. अदरवाइज डायबिटीज कोई भी डिजीज नहीं, इज अ क्रॉनिक कंडीशन. और आगे जाके इट बेसिकली वेलकम सो मेनी प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. And you can see these are the all experiences 45K के ऊपर patients love and user experiences. They have successfully done their journey. और उन लोगों ने सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट किया, अचीव किया, डायबिटीज रिवर्स भी किया अपना किसी इसमें से किसी पेशेंट ने. और दे आर डूइंग रियली, दे आर ऑलरेडी ऑल्सो डन समथिंग. और वो हम लोगों के साथ अभी भी वो लोग हमारे साथ है. तो दे आर डूइंग रियली ग्रेट. दीज आर द यूजर एक्सपीरियंसेस. So these two users, one of the user is also watching the webinar and the program also. So he has done great. So please see that. And it will definitely motivate you also. These are our personalized diabetes coaching plans. Benefits with Wealthy Plus plan, Wealthy Pro plan, and Wealthy Premium plan. If you are looking for any plan, please talk to your health coaches. They will help you for the renewals, for the enrollings. You can see almost 2.36 kg mean weight loss have achieved through our journey, through our program. तो होता है, ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं दिखता है. Definitely the result is visible, but very frank and very rational thing want to tell you, all of you. जितना भी हेल्थ कोच अपना अफोर्ड डाले, अगर हेल्थ कोच का अफोर्ड 100% हो, so yours अफोर्ड should be 200%. आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा तो ही जाके रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि करना तो बेसिकली आप लोगों को ही है, राइट? So these are our complete care team. We do cater like this way, and we always try to deliver our users, our patients with lots of information and services. See, there is a lots of things like hyperglycemic episodes, hypoglycemic episodes. हमने बात भी किया इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कि शुगर का दो काउंटर होता है, एक हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि शुगर रेंजेस इज वेरी हाई, एंड अनदर थिंग इज हाइपोग्लाइसेमिया जहाँ पर शुगर रेंजेस बहुत कम होता है, बिलो 70. सो दीज टू कंडीशन इज नॉट अप्रिशिएटेड. इसी के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर आपको वेट, आपका ओवर वेट है ना, आप ओबेस हो, देयर इज अ चांस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया. आपको चेक करना पड़ेगा आपका शुगर लेवल. और अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, बहुत कम हो जा रहा है, अचानक से वेट अनइंटेंशनली, अनएक्सप्लेनिंगली अचानक से घट जा रहा है वेट, सो देयर कैन बी अ चांस ऑफ द सिनेरियो ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया. वो भी आपको चेक करना पड़ेगा. अगर आप कोई भी फास्टिंग में हो, अगर आपका कोई रिलीजियस फास्ट है या कुछ भी है, टॉक टू योर हेल्थ कोचेस. दे कैन गाइड यू कि उस दिन आपको कैसे मैनेज करना है. पूरा दिन भूखा रहना या फिर प्रॉपरली मैनेज ना करना है, एक दिन का वो कैन लीड दैट लेवल पर रिजल्ट पे प्रॉब्लम आ सकता है. तो प्लीज टॉक टू योर हेल्थ कोचेस. कोई सेलिब्रेशन वगैरह अगर आपका हो रहा है तो इन दैट केस, या फिर यू आर ट्रैवलिंग, you have the Wealthy Care application where you can take a picture and send your health coaches कि ये मेरा खाने का options है, I can avail what food. तो वो instant guidance हमारा जो available window में है वो हम आपको provide कर सकते हैं easily when you are traveling. So thank you so much. Thank you so much for listening this topic. So our आज का topic जो था ना वो था weight loss और early signs of diabetes के बारे में. So हमने दो चीजें जाना. वेट लॉस टॉपिक एक ही है, वेट लॉस, लेकिन उसका दो पर्सपेक्टिव है. एक तो है कि वेट लॉस एक अनइंटेंशनल है, एक इंटेंशनल है. उसको कैसे मैनेज करना है, व्हाट आर द रेमेडीज, वी हैव डिस्कस्ड in the chat section. Thank you so much all of you for listening the session with lots of attention, and you guys all are feel free to ask any questions.
Wow. Thank you so much, Madhurima, for such a simple explanation. I'm sure users have understood the basic information that why maintaining your BMI, why losing weight is important. And I do not see any questions till now for weight loss or BMI or eating habits. But I know my users really well, and on behalf of the AccuCheck Wealthy family, I want to ask you a few questions. The first common thing is that many users feel that अगर मैं कम खाना खाऊंगा या मैं कम intake करूंगा तो उससे मेरा weight loss होगा. So is that a right way to work on weight loss, or would you like to explain this? यस सो अगर ऐसा कंडीशन हो कि आपको लग रहा है इफ यू आर थिंकिंग कि कम खाना खाने की वजह से यू कैन लूज योर वेट, डेफिनेटली यू कैन लूज योर वेट बिकॉज आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगा, प्रॉपर कैलोरी नहीं मिलेगा, तो यू विल लूज योर वेट. लेकिन आपका जो एनर्जी विल नीड टू परफॉर्म योर होल फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ होल डे, दैट यू विल नॉट गेट फ्रॉम द फूड, क्योंकि आपने जो खाना आपके लिए जरूरी था विच इज नीडेड फॉर यू, वो आपने नहीं खाया. अगर कोई वेट लॉस प्रोग्राम में है, अगर कोई डायबिटीज प्रोग्राम में भी है, अ सर्टेन कैलोरी इज नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो कैलोरी मीट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स एंड फूड चॉइसेस लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स. तो चारों टाइम पे प्रॉपरली खाना खाना चाहिए इन अ प्रॉपर टाइम, प्रॉपर चॉइस ऑफ फूड, तो ही जाके आपको लो ग्लाइसेमिक लोडेड फूड, तो ही जाके आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगा टू परफॉर्म योर फिजिकल एक्टिविटी, एंड दैट इज अ हेल्दी वे टू लूज योर वेट. और आपका जो क्वेश्चन था दैट इज अ अनहेल्दी वे टू लूज योर वेट. Absolutely. Thank you, Madhurima, for that. Shaktidhar ji, good evening. Thank you so much for joining today's session. So, Shaktidhar ji is asking us, weight loss के लिए कोई specific exercises है क्या? Of course, exercising is important, but are there any specific exercises which can help lose weight? हाय शक्तिधर, गुड इवनिंग. सो वेट लॉस के लिए डेफिनेटली, जैसे कि वेट गेन के लिए है, वेट लॉस के लिए भी देयर इज एक्सरसाइज अवेलेबल. इसके लिए आप यू प्लीज रीच योर हेल्थ कोच बिकॉज इट्स अ वेरी इंडिविजुअल एंड पर्सन स्पेसिफिक. तो आपके लिए कौन सा सही है, बिकॉज योर हेल्थ कोच नोज ऑल योर कंडीशंस कि आप कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल पोटेंशियलिटी. तो उसके हिसाब से वो आपको एक्सरसाइज सजेस्ट कर देगी. सो प्लीज टू रीच योर हेल्थ कोच. Okay. Ha. So just to add, Shaktidhar ji, we cannot actually generalize any exercise routine for anyone. And that's the reason our speaker for today has routed you to your health coach. क्योंकि आपका BMI कितना है, आपका weight कितना है, आपका blood sugar कितना है, आपका A1C कितना है, based on that, our coach will guide you on what are the right exercises for you. So without fail, put a reminder in your chat box on the app or on your phone. And next time when your health coach connects with you, please speak to her about this. Yes, he has a following up question, Madhurima Shaktidhar ji. He is asking, what role does oil play in losing weight? Yes, definitely. Oil, the choice of oil, the quantity of oil is very, very important. एक particular 1% के लिए at least 2 to 3 teaspoon or 3 to 4 teaspoon oil per head per day can be recommended. But again, it is very individual and person specific. कि आपका जो eating habit है, आपका जो food habit है, आप कौन सा कैसे टाइप का खाना खा रहे हो, that will definitely depend. और choice of oil में you can go for normal simple mustard oil. These are the very good thing you can take. We always opt for some like olive oil and everything, but olive oil and the other oils are like जो normal खाना होता है ना, shallow fried खाना, उनके लिए it is very very good. बाकी आप नॉर्मल ऑयल चॉइस से भी ज्यादा आप फोकस कर सकते हो कि आपका जो क्वांटिटी है वो कितना है एवरी डे पर डे के हिसाब से. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना ऑयल चूज कर रहे हो. एंड द मूफा ऑयल, द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑयल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑयल जो प्रोवाइड करते हैं दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ऐसे ऑयल को चूज कर सकते हो टू इंक्लूड इन योर डाइट.
तो दैट विल बी हेल्पफुल आई गेस। फिर भी अगर आपको कोई जेनेरिक ये जेनेरिक एक सजेशन था, फिर भी अगर आपको आपके डाइट के हिसाब से जानना है कि आप जो खाना खा रहे हो, जो पैटर्न आपका है, उसके हिसाब से कितना ऑयल क्वांटिटी चाहिए या कौन सा ऑयल आप यूज कर सकते हो, आप जहाँ पर रहते हो अराउंड द एरिया विच इज अवेलेबल, कहाँ कौन सा ऑयल इज वेरी वेरी अवेलेबल, हाउ यू कैन परचेस, हाउ यू कैन गेट दैट, वो सारी चीजें डिपेंड करती है दैट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ऋतुजा, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग विद दैट। श्योर श्योर। सो शक्तिधर जी, 2-3 चीजें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी है। ऑयल एक ऐसी चीज है कि अगर आप राइट प्रपोर्शन में यूज करेंगे, इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर में आपके कितने लोग हैं, पर पर्सन पूरे महीने का ऑयल इनटेक होना चाहिए 1/2 लीटर। For the entire month, for one person, oil intake has to be 1/2 liter. So if you have 4 people in the family, ensure कि महीने में आप 2 लीटर से ज्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करें. This is strictly for the entire month's consumption. ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी डीप फ्राइड आइटम्स, शैलो फ्राइड आइटम्स, बेकरी आइटम्स को अवॉइड करना है, because these items absorb a lot of oil and hence lead to weight gain. ओके। तीसरी चीज, हर महीने आपको ऑयल को चेंज करते रहना है। यू कैनॉट हैव वन ऑयल। जैसे काफी सारे इंडियन हाउसेस में ये ट्रेडिशन है कि एक ही बार हम 10 लीटर का एक ऑयल का कैन लेके आते हैं एंड वी यूज इट फॉर नेक्स्ट 3 months, 4 months. So please avoid doing that. Every month there should be a combination of oils which you can use. 2-3 oils which I can suggest for good Indian cooking is rice bran oil, sunflower oil, safflower oil, canola oil. All of these oils are good. Olive oil is not good for Indian cooking. मतलब आप सब्जी वगैरह ये सारी चीजें बना रहे हैं, दाल तड़का दे रहे हैं, हाई फ्लेम पे उसको बॉईल करके उसमें फिर आपका फूड बना रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज ऑलिव ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है. So do not use olive oil for Indian cooking, but you can use it on salads, pickles, chutneys, all of these things. But vegetable cooking, veg cooking, Indian home cooking के लिए canola oil, rice bran oil, safflower oil, groundnut oil, sunflower oil, these are all healthy options you can try. If you want to know more information on this, please speak to your health coach and we can connect separately and discuss about your oil intake. All right. Thanks. I hope Shaktidhar ji, me and my team are able to help you resolve all your queries. We have Kapil ji. Hello, Kapil ji. Good evening. Thank you so much for joining today. So, Madhurima, Kapil ji has a question. He goes on tours a lot due to his work. So, how to take care of eating out? Because that is a major concern when you have high blood sugars. So, would you like to give us a overview on outside eating and how that needs to be maintained in your day-to-day routine? Yes, yes, sure. Hi, Kapil. Good evening. So, yes, when you are traveling a lot, then your food schedules, your diet schedule should be, designed in this way. So, as a backup, you have to be very mindful. Uh, where are you going? वहाँ पर क्या खाना मिलने वाला है? The choice of foods. You can carry some snacks, fruits, fresh fruits. You can carry. You can carry normal छोले का सत्तू जो होता है ना packet. You can carry that. And whenever you feel hungry, you can make a normal paste sharbat, or we can say sharbat, definitely no use of sugar and anything, and you can take that. अगर आप जहाँ पर जा रहे हो वहां पर जो खाने का ऑप्शंस है उनमें से अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या खाना है, यू कैन टेक अ पिक्चर एंड यू कैन सेंड द वेल्दी चैट सेक्शन इन द कोच सेक्शन टू योर हेल्थ कोच what I can choose. So if it is in available window, our health coach will help you कि आप इनमें से ये खाना चूज कर सकते हो. बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको है कि कार्ब्स आपको नहीं लेना है, आपको प्रोटीन, फाइबर, फ्रूट्स, सैलड, ये सारी चीजें चूज करना है. ब्रेड, राइस आपको चूज नहीं करना है. एंड इफ यू हैव अ रिच फूड इन योर डे, आपको पता है कि हाउ मच कार्बोहाइड्रेट यू हैव इनटेक, हाउ मच जानने के लिए यू कैन लॉग इन द वेल्दी एप्लीकेशन एंड यू कैन सी कि आपने कितना कैलोरी लिया है. Based on that, you can actually design your rest of the day. आप रात को सोने से पहले
और नॉर्मल ल्यूकवार्म पानी में थोड़ा चिया सीड्स मिक्स करके चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू. So when you are traveling now, you have to be more cautious and you have to focus on your planning. कि कहाँ आप जा रहे हो, वहां पर का अवेलेबिलिटी होगा, और यू कैन कैरी समथिंग. सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी पर्टिकुलर वो कौन सा खाने का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, दैट टाइम के लिए आप अपने हेल्थ कोच का हेल्प ले सकती हो आराम से. वेन एवर यू कैन गेट सम जो वेल्दी कोच ऑप्शन पे आप अपने हेल्थ कोच को रीच कर सकते हो वहां पर. Great. Thank you so much, Madhurima, for that. Mr. Chakravarti, good evening. Thank you so much for joining today's session. He is asking us, diabetic patient need to lose weight or overweight people will be victims of diabetes. Will they get diabetes by virtue of overweight? So I think he's trying to correlate obesity and type 2 diabetes. Would you like to explain what is the correlation and what exactly happens in this case? Yes, yes, I will try. Mr. Chakravarti, good evening. So yes, you are right. ऐसा नहीं है कि you are overweight or you are obese or you are underweight कि आपको diabetes है. There is some बहुत other reasons है behind obesity or overweight and weight loss. लेकिन अगर आपको weight loss हो रहा है, अचानक से you are losing so many weights, अचानक से you are gaining weight, then it is the early signs and symptoms. It can be early signs and symptoms. तभी आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपका शुगर चेक करना. यू कैन यूज योर एक्यूचेक ग्लूकोमीटर एंड यू कैन चेक योर शुगर लेवल्स कि आपको शुगर तो नहीं हो रहा है, राइट? बिकॉज इट्स अ इंडिकेशन कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तभी आपको प्रिकॉशन लेना है. हम जब बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कब लेना है वो प्रिकॉशन? इसी टाइम पे लेना है जब आपको वेट लॉस हो रहा है या भाई आपको वेट गेन हो रहा है, कि आगे जाके मुझे डायबिटीज या ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस जो है वो नहीं हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं हो, तभी आपको वो प्रिकॉशन लेना है. बट यस, ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी या ओवरवेट मतलब ही डायबिटीज है, या फिर वेट लॉस का मतलब ही डेफिनेटली आपको डायबिटीज होगा. बट इट्स अ प्रिकॉशन, आपको प्रिकॉशन टाइम एंड इट्स अ आइडेंटिफिकेशन साइंस. यही आपको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम तो नहीं है ना. लेट मी चेक, लेट मी चेक माय शुगर रीडिंग्स. Absolutely. Thank you for that, Madhurima. I think it clearly defines the correlationship between overweight and obesity. What about refined oil? Is coconut oil good? Hello, Sanjeev ji. Hello, Jose. I think both of your questions are similar. So I'm trying to combine them. So Sanjeev ji and Jose is asking refined oil. What about that? And is coconut oil a good option? Yes, yes, coconut oil is a good option. But as Rutuja has mentioned earlier that you have to change your oil on a month basis. एक ही oil पर depend नहीं होना है. घुमा फिरा के आपको oil use करना है. Quantity is the focus. आप कौन सा खाना खा रहे हो. And also sometimes ना region basis पर भी oil हम choose करते हैं. जैसे कि if we are from the south side, we prefer the coconut oil. If we are from the north side, we prefer the normal mustard oil. So it depends. लेकिन आप कितना क्वांटिटी पे ले रहे हो और आपको मंथली ऑयल घुमा फिरा के चेंज करना, that can impact. If you, Rutuja, if you like to add something on that. Sure, sure. I think this is very clear. कोई भी oil आप use कीजिए, कोई problem नहीं है. As far as it is not saturated fat, पूरी तरीके से घी, बटर, मार्गरीन ये नहीं यूज करना है. कोई भी ऑयल यूज कीजिए. Quantity has to be restricted to half liter per person per month. Okay, it should not go beyond that. And next, every month you need to keep updating your oils. हम जैसे मोबाइल फोन्स अपडेट करते हैं, लैपटॉप्स अपडेट करते हैं, उसी तरह से हमें हमारे ऑयल्स, हमारे हेल्दी ईटिंग को भी अपडेट करते रहना. Great. All right. So we have Sunita ji. Sunita ji, कैसी हैं आप? Thank you so much for joining today's session. I'm glad to see you after a long time. So Sunita ji is very concerned about her weight and she wants to know, is it possible to lose weight after 40? So I will answer this on behalf of my coaches. You are in the right program. You are in the right path. हम आपको कोई भी medicines, tablets, powders, protein ऐसा कुछ नहीं देते. Ours is a completely natural program.
जहाँ पे एक रूटीन फॉलो करना है, आपके बिहेवियर, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना 100% पॉसिबल है। आप 100% कमिटमेंट दीजिए कोच को, और कोच 100% ये इंश्योर करेगा कि आप वेट लॉस कर रहे हैं। ठीक है? I hope this answers your question. Let's move on. So, Madhurima, we have few questions. Avinash ji, good evening. Thank you so much for joining today's session. I'm happy to see you as a part of the AccuCheck Wealthy family. Thank you again for joining. Avinash ji is asking, why is there an increase in diabetes in 10 crore people in India? Are the foods or lifestyles causing this? There are several drives and awareness programs, but there is always an increase in diabetes. Why? Yes, hi Avinash, good evening. The answers is already there in your question. Definitely. Before starting everything, anything now, before changing, we have to driven by ourselves कि हमें ये करना है. हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो कहीं जगह पर भी इन सम एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं तो वहां पर ग्लिच है या प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए डायबिटीज हो रहा है. तो हमें इसीलिए प्रिकॉशन लेना है. हमारा जो आज का टॉपिक था ना, वो था अर्ली साइंस, कि शुरुआत में जो साइंस हमें दिख रहा है उसी के ऊपर हमें काम करना होगा, तो जाके आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड डेफिनेटली वी ऑलवेज टेल कि वी आर द हेल्थ कोचेस. सो हेल्थ कोचेस का मतलब क्या है ना, वी ऑलवेज टू ट्राई टू क्योर एंड केटर योर लाइफस्टाइल. तो आपका जो दिनचर्या है ना, फ्रॉम वेकअप टू गो टू बेड, आपको कैसे कौन से टाइम पे खाना खाना है, सिर्फ यही नहीं, आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, आपको मैनेज कैसे करना है इन टर्म्स ऑफ वाटर इनटेक से शुरू होकर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, डाइट, एवरीथिंग वी फोकस. सो इससे क्या होगा, इट ऑल कवर अप द लाइफस्टाइल. तो अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर होगा, और आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए, अगर कहीं पर गलत होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ क्या खाना है, किससे कम होगा, दैट तो वी नो, लेकिन अगर गलत हो जाता है, वी हैव टू ऑल्सो नॉलेजेबल इनफ उसको सही कैसे करना है. सो दिस नॉलेज वी डू डिलीवर टू दिस प्रोग्राम, इसी को हम लाइफस्टाइल चेंजेस में इंप्लीमेंट करते हैं. आई होप दिस आंसर विल हेल्प यू. Absolutely. Thank you so much for sharing that. Also, to let you know, India is the highly populated country, and that's the reason our percentage of people are more, and that's why we are here. हमारे प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा तो हम आपको बस एक सिंपल डाइट प्लान लेके नहीं देते, हम आपको सिखाते हैं डायबिटीज क्या है, हम आपको बताते हैं किस तरह से उसको प्रिवेंट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. See, if we educate one person, we educate the entire family, we educate the entire circle you're a part of, which is very, very important. And that's the main purpose of AccuCheck Wealthy program, not just reducing your blood sugars, working on them, but also ensuring that every single person who is on a prevention or is at a risk of developing these health conditions is trying to work on it, and we together can reduce this number. So Avinash ji, आप मुझे बताइए आप किस तरह से contribute करेंगे इसमें हमारी help करने में. We will be more than happy. We can connect and we can discuss on this. So we have Mr. Narayana. Hello, Mr. Narayan. Thank you so much for joining today's session. He is asking his BMI is 25.3 and weight is 70.3 kgs. How much weight should I reduce? हेलो नारायण, वेरी गुड इवनिंग. सो यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, एक तो आपकी एज और एक तो आपकी हाइट. ठीक है. सो आपने बीएमआई बताया है 25.3, विच इज डेफिनेटली इज ओवरवेट रेंज, बट इट इज जस्ट ओवरवेट. मतलब ओवरवेट का जो रेंज है ना, दैट इज 25.0 से स्टार्ट होता है, एंड यू आर 25.3, so you have just overweight. So basically, if you can go for at least 4 to 5 kgs initially and gradual reciprocation with your body, that will be more welcomed. और बेस्ट आगे जाके आपकी फिजिकल कंडीशन और एबिलिटी के हिसाब से बाकी वेट रिडक्शन के ऊपर आपकी हेल्थ कोच फोकस कर सकती है. बट इनिशियली अगर आप ग्रेजुअल रेसिप्रोकेशन में जाना चाहेंगे, एटलीस्ट 4 to 5 kg, आपका भी 70.3 है, एटलीस्ट 65, 63 ऐसे रेंजेस में आना, इट विल बी गुड फॉर यू. तो जाके आपका जो बीएमआई होगा ना, वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, क्योंकि इट इज ओनली 25.3 और ओवरवेट स्टार्ट होता है 25.0 से.
सो अगर एटलीस्ट आपका 1-2 kg भी घटता है इनिशियली, तो भी आप नॉर्मल वेट में आ जाएंगे, नॉर्मल बीएमआई में। फिर उसको मेंटेन करना होगा ताकि वो फिट से ना बढ़े। देन यू कैन गो फॉर अगेन वेट लॉस, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेजुअल रेसिप्रोकेशन ऑफ बॉडी। Great. Thank you so much, Madhurima, for that. Wow, what a great discussion. I am very happy with our AccuCheck Wealthy family. And with this, we end our today's discussion. Thank you so much to each one of you for your active participation. We are going to conduct more of such sessions which can help motivate and share a lot of information with all of you. Meanwhile, for this week, thank you so much for joining us. And next week, we will start with another interesting topic. Meanwhile, take care of your health. Thank you, Madhurima, for your active knowledge sharing. And we will connect with all our AccuCheck Wealthy family next week. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Have a nice weekend ahead.